which we were doing yesterday. So we had started nomadic, this pastoralism. Pastoralism is the domestication of animals. और ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है पेस्टोरलिज्म जो है, जब ह्यूमन बींग्स को ये रियलाइज हुआ कि हंटिंग एंड गैदरिंग इज नॉट अ वेरी सस्टेनेंस एक्टिविटी, हम इसे बहुत लंबे समय तक जो है नहीं कर सकते अपने आप को सस्टेन करने के लिए. सो दे लुक फॉर सम अल्टरनेटिव एंड domestication of animal was the best thing which they considered. So they starting rearing of the animals which they found in their nearest surrounding. आपको पता है कि डिफरेंट जोग्राफिकल फैक्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उनको जो है मनुष्य ने पालना शुरू किया, रेयर करना शुरू किया, और उन्हीं से जो है अपने हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करते थे. इसका जो है आप एक एग्जांपल देख सकते हो आज के इन द प्रेजेंट कंडीशन. ऑल्सो देयर आर सर्टेन ट्राइब्स इन नॉर्दर्न कनाडा और इन द नॉर्दर्न यूरेशियन पार्ट जो अपने एनिमल्स से ही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, तो एनिमल्स ही उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं. तो यही जो सेम सिस्टम है, इट वाज फॉलोड इन द प्रिमिटिव टाइम आल्सो. नाउ अगेन पेस्टोरलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज योर नोमैडिक हर्डिंग, जिसको हम चलवासी पशुचारण कहते हैं हिंदी में, एंड द अदर वन इज योर कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग. So these are the two types of pastoralism. Okay, so you have to remember it very carefully. Pastoralism is the rearing of animals, but on the basis of the type or the method which is involved in the rearing of animals, it is divided into nomadic herding and commercial livestock rearing. And as the name suggests, the basic difference between these two types of rearing is that nomadic herding, in this जो herders होते हैं or the people or the tribes, they rear animal for their own use, for their own consumption, to fulfill their own needs and requirement. That's why it is subsistence type. What does the word subsistence means? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. जब हम कोई भी, चाहे हम खेती बाड़ी करें, चाहे हम एनिमल्स को उनका डोमेस्टिकेशन करें सिर्फ अपने पर्पस के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस. Alright, so nomadic herding is a subsistence type of activity, because in this herders rear animal for their own use. But commercial livestock rearing is a totally different type of zone. In this, it is done on a very large scale and for commercial purpose. Animals are reared, and they're all and their milk, skin, meat, hide, everything is used for sale in the market to earn profit. And there are certain countries whose economy totally depend on the commercial livestock rearing. पूरी उनकी इकोनॉमी जो है वो इसी एक्टिविटी पे निर्भर करती है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो मैंने आपको कल बताया था, अर्जेंटीना. तो अब हम इनके बारे में जो है वो डिफरेंस पढ़ते हैं, बिकॉज मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. सो it can come totally like how nomadic herd, what is the features of, what are the features of nomadic herding, or how it is different from commercial livestock rearing. So in any case, whatever they ask you, you should know at least 5 points of nomadic herding and commercial livestock rearing. ऑलराइट, या फिर यही नहीं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबके बारे में एटलीस्ट यू शुड नो 5 पॉइंट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू नोमैडिक हर्डिंग इन डिटेल. अगर मैं इसको ना भी पढ़ूं तो बहुत ही एक आसान सी चीज़ ये है कि नोमैडिक हर्डिंग, हु आर द नोमैड पीपल. क्या आपने नोमैडिक वर्ड सुना है पहले कभी? चलवासी. मैंने आपसे कहा था कि इसको पढ़ के आइएगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय नोमैडिक? आप कोई बच्चा बता सकता है? Ma'am, people move from one place to another along with the livestock in search of grass and water. All right, very good. Devansh has given a wonderful answer. That what nomad means, those people who do not settle at a single place and they always move. Then if we add word herd, it means that these people are moving along with their animals in search of food and water and pasture. तो इसे हम क्या कहते हैं? नोमैडिक हर्डिंग. सो नोमैड्स जो होते हैं चलवासी अगर हिंदी में आप देख रहे हो, चलने वाले, वो एक जगह पे रुकते नहीं है. और ये कौन से लोग होते हैं? बेसिकली ट्राइबल लोग होते हैं, चाहे वो आपके डेजर्टिक हो और चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, जैसे आपका अरेबिया है या फिर हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया या फिर सहारा डेजर्ट है. तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सेटल लाइफ नहीं जीते. आज के टाइम में काफ़ी स्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, बट अगर हम पहले से भी काफ़ी समय तक ये जो नोमैडिक हर्डिंग था वो कॉन्टिन्यू था. अब इसका आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हाल है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. नोमैडिक हर्डिंग
आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, नोमैडिक हर्डिंग मीन्स मूवमेंट ऑफ हर्ड्स विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड पेस्चर, water. Nomadic herding of pastoral nomadism is a primitive subsistence activity. First of all, it is primitive, आदिकालीन निर्वाह टाइप की ये एक गतिविधि है, ठीक है. इसमें एक एक वर्ड आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये यू हैव टू राइट ऑल दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स फॉर क्वालिटी तभी आपकी आंसर की इंप्रूव होगी जब आप ये सारे वर्ड्स लिखोगे. सो नोमैडिक हर्डिंग आप बिल्कुल रट लीजिए कि ये वर्ड्स हैं, और बाद में इनको आप अपने सेंटेंस में बना के लिख लीजिएगा. नोमैडिक हर्डिंग, इट इज प्रिमिटिव, आदिकालीन है. सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस मतलब निर्वाह, मतलब खुद की गुजारे के लिए एक्टिविटी है. इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स, इसमें जो हर्डर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, दे टोटली डिपेंड ऑन फूड, फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑन देयर एनिमल्स. ऑलराइट, सो इनकी जो भी इनका जीवन का जो भी ऑल देयर लाइफ डिपेंड्स और रिवॉल्व अराउंड देयर एनिमल्स. एज आई गिव यू एग्जांपल yesterday only that the Eskimos or the tribal people of the northern Eurasia or northern Canada, they depend on reindeers for their survival, because जो उनकी स्किन है, हाइड है, they used to wear those फर वाले जो आपके कोट्स होते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन. ड्यूरिंग विंटर क्या, वहाँ पे तो विंटर ही होता ही है, बहुत -60-70 ऐसे टेम्परेचर होता है. देन क्लोथिंग है, चाहे फूड है, उसी को खा लेना, उसी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना. सो दे उनकी लाइफ पूरी उसी अपने जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करती है. देन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड वाटर. ठीक है, तो जहां उन्हें लगता है, मान लो सीजन चेंज हुआ, उन्हें लगा कि अब यहाँ पे घास या पानी खत्म हो गया, तो वो अपने एनिमल्स के साथ दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं. फिर जब वहां पे खत्म हो जाता है तो फिर वापस जहां पे पहले थे वहां पर आ जाते हैं. सो दिस इज द कॉन्टिन्यूअस माइग्रेशन ऑफ द नोमैड्स विद देयर एनिमल्स. Each nomadic community occupies a well-defined territory as a matter of tradition. और जितने भी आपके ट्राइब्स होती हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज होती हैं, हम इन्हें ट्राइब की जगह नोमैडिक कम्युनिटी कहेंगे, क्योंकि इनका वेल डिफाइंड, जैसे हमारे इंडिया में गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, वो ट्राइब्स नहीं है. दे आर उनका मेन पेशा क्या होता है, एनिमल्स को रेयर करना. सो दे आर नोमैडिक पीपल. देन नोमैडिज्म जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन. जिस तरह का एरिया होगा और अवेलेबल एनिमल्स होंगे, उसी तरह के जो एनिमल्स है उनको रेयर किया जाता है. इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक. कैटल्स मीन्स जैसे आपके काउ, बफेलो, शीप, ये सब होते हैं. वाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स, शीप्स, गोट्स एंड कैमल्स आर रेयर. इन द माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, याक एंड लामास, ये सब डिफरेंट तरह के जो आपके काउ और जो बफेलोज होते हैं उनकी वैरायटी होती है. तो तिब्बत क्योंकि ठंडा एरिया है, एंडीज माउंटेन्स जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, वो भी बहुत ठंडा एरिया है. तो यहाँ पे जो है याक एंड लामास को जो है रेयर किया जाता है. आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में जो है रेनडियर्स, इनको जो है डोमेस्टिकेट किया जाता है, ताकि क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं. अब आप चाहो कि कैमल को हम आर्कटिक एरिया में डोमेस्टिकेट कर लें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विद 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स. अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 3 ऐसे एरियाज हैं. देयर आर 3 वेल डिफाइंड जोन्स वेयर दिस एक्टिविटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट इन द थ्योरी फॉर्म. One is the core region. The most important region is from Atlantic shore, Atlantic Ocean, जहाँ भी आप अपने दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कहाँ पे, Atlantic shore of North Africa to eastward across Arabian Peninsula into the Mongolia and China, Central China. अब हम देखते हैं कि ये एरिया है कहाँ पे, मैप होगा इसका. हाँ, ये है नोमैडिक हर्डिंग का. तो जो अभी आपको बताया कि शोर्स ऑफ अटलांटिक से लेके पूरा आपका ये अफ्रीका का जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, अरेबियन पेनिनसुला से लेके सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया, ये सबसे कॉन्टिन्यूअस बेल्ट है, और इसी के बारे में भी आपने पढ़ा है. जो मैंने आपको अभी बताया वो यही बेल्ट है. एक्सटेंड, इट इज अ वेरी लॉन्ग, ह्यूज एंड लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम द शोर्स ऑफ द अटलांटिक ओशन टू नॉर्दर्न अफ्रीका टू अरेबियन पेनिनसुला. देन आपका जो ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, then it continues till northern part of India, then central China and Mongolia. ये पूरा बेल्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ से एक्सटेंड होता है. देन ये फर्स्ट वेल डिफाइंड बेल्ट है आपका, कोर एरिया ये. सेकेंड वन आप देख सकते हो नॉर्दर्न यूरेशिया, विच इज नियर द आर्कटिक
ओशन, जो कि बहुत ही ठंडा एरिया है और आप समझ सकते हो यहाँ पे कौन से एनिमल्स को रेयर किया जाता होगा। नाउ नेक्स्ट इज, और कौन सा एरिया हम देखते हैं, तो पहला इन्होंने ये बता दिया आपको अटलांटिक से लेकर नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, जो मैंने अभी आपको मैप पे दिखा दिया, ठीक है। सेकंड इज द सेकंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, जो मैंने अभी आपको टिक मार्क कराया था सेकंड एरिया, उसको हम यूरेशिया का टुंड्रा रीजन कहते हैं। टुंड्रा इज द एरिया अबव और नियर टू द 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास का जो एरिया है 70 डिग्री के ऊपर का, उसको हम टुंड्रा रीजन कहते हैं। In the southern hemisphere, there are small areas in southwest Africa and on the island of Madagascar. तो southern hemisphere में कमी है, लेकिन northern hemisphere में इसका पूरा well defined area है। Now movement in search of pasture is undertaken either over vast horizontal distances or vertically from one elevation to another in the mountainous region. Now here they are saying that this movement of the nomads with their animals takes place in two directions. Either they move horizontally from one place to another place, alright, अगर प्लेन एरिया है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, और अगर दे आर और इफ दे आर लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया, सपोज ये माउंटेनियस एरियाज में रह रहे हैं, सो देयर मूवमेंट विल बी वर्टिकली। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे हमारे गुज्जर एंड बकरवाल ट्राइब्स हैं आपके जम्मू कश्मीर के एरिया में, तो वो क्या होता है कि जब भी आपका समर का मौसम होता है तो वो प्लेन एरिया से ऊपर माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। दे मूव फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेनियस एरियाज, क्योंकि समर्स में आइस मेल्ट हो जाता है, ग्रीनरी हो जाती है, तो वहाँ पे अच्छा वेल डिफाइंड उनको पेस्चर और पानी मिल जाता है। सो दे मूव ड्यूरिंग समर्स इन द अप द हिल्स, अप द माउंटेन, एंड ड्यूरिंग विंटर्स दे मूव डाउनवर्ड इन द प्लेन एरिया। तो वो जैसी विंटर्स स्टार्ट होता है, क्योंकि विंटर्स बहुत हार्श होता है आपके जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, तो वो क्या करते हैं माउंटेन से नीचे की तरफ प्लेन एरिया में उतर आते हैं, ताकि उन्हें जो वाटर और पेस्चर की कमी विंटर्स के टाइम में ना हो। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांस ह्यूमंस, ऋतु प्रवास, ठीक है। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, ट्रांस ह्यूमंस और ऋतु प्रवास, बिकॉज नोमैडिक हर्डिंग इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू सीजन। during summer season they are moving up the mountain in search of food and pasture, and during winter season they are moving down the mountain in the plain area, because during the winter season mountains जो होते हैं they are covered by snow, snowfall होती है, तो बिल्कुल जमीन ढक जाता है बर्फ से, तो उन्हें कहीं भी घास और पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो वो नीचे आ जाते हैं, प्लेन एरिया में आ जाते हैं। सो दिस इज द सीजनल माइग्रेशन, सीजन के अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज नोन एज ट्रांसह्यूमंस, जो यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरिया टू पेस्चर ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पेस्चर टू प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमंस। तो जब आप ट्रांसह्यूमंस के को डिफाइन करेंगे तो आपको ये दो चीजें जरूर लिखनी है उसमें, कि फ्रॉम प्लेन एरिया टू माउंटेन्स ड्यूरिंग समर एंड फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन एरिया ड्यूरिंग विंटर्स, दिस मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सीजन इज नोन एज ट्रांसह्यूमंस। सिर्फ आप इतना लिख के नहीं छोड़ दोगे कि मूवमेंट फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन टू माउंटेन, आपको सीजन भी ऐड करना पड़ेगा कि किस मौसम में वो प्लेन से माउंटेन जाते हैं और किस सीजन में वो माउंटेन से प्लेन एरिया में आते हैं। ये आपका ट्रांसह्यूमंस होता है, बिकॉज इसको ऋतु प्रवास क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋतु के अकॉर्डिंग प्रवास हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज इन हिमालयस रीजन गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, गड्डीज, भोटियाज, ये जो होते हैं वो सीजनली माइग्रेट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स पे। Similarly, in the tundra region, nomadic herders move from south to north in the summers and from north to south in winters. यहाँ पे वर्टिकल नहीं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टाइप का मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि जब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि ये क्या है, ये मान लो आपका टुंड्रा रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो जैसे ही विंटर्स आते हैं ये साउथ की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही आपके समर्स आते हैं ये अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है ये आपका टुंड्रा में होता है, और ये भी एक तरह का ट्रांसह्यूमंस है। The number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them shrinking. अब इसमें देखो लास्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि अब जो नोमैडिक हर्डिंग है इट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, द प्रैक्टिस ऑफ this activity is decreasing continuously because of two reasons.
नाउ विच इज द फर्स्ट रीजन, इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। देखो पहले के टाइम में इतनी फिक्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी, लोग खुले आराम से मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर जाते थे अपने एनिमल्स के साथ। बट नाउ द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज दे आर इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड नाउ देयर मूवमेंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसीलिए अब ये जो इनका मूवमेंट क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो गया, सो दैट्स वाई अब जो लोग हैं ये चीज एक्टिविटी छोड़कर और परमानेंट जो है रोजगार की तलाश में, अब यहाँ इनके जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो बेहतर रोजगार की तलाश में सिटीज में या कहीं और माइग्रेट कर रही है। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी अब कम होती जा रही है। देन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, उन्होंने न्यू सेटलमेंट प्लान्स लेकर आए हैं कि ये जो इस एक्टिविटी को छोड़कर जो ये नोमैड्स हैं वो एक जगह पे सेटल हो जाएं और एक मतलब सेटल लाइफ को व्यतीत करें। तो इसके लिए भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्लान बना रही है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से जो आपका नोमैडिक जो ये है एक्टिविटी, अब वो डिक्लाइन हो रही है, अब वो कम हो रही है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप जब भी लिखोगे तो आप ये लिखना, नोमैडिक हर्डिंग में फर्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी and in this people or herders they rely on their animal for everything, for fulfilling their needs and requirement. Then third point आप लिखोगे they move from one place to another. This is very important point. अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका पूरा इनकम्प्लीट हो जाएगा। nomadic herding nomads they move with their animals from one place to another in search of food and water या grass, pasture यूज वर्ड करना, फूड मत यूज करना, pasture and water. देन आप लिखोगे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज दे रेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक सिचुएशन। सो देन यू विल राइट एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स व्हिच आर रेयर्ड, लाइक कुछ ठंडे एरियाज का एग्जांपल दे देना और कुछ आपके जो कोल्ड हॉट एरियाज हैं उनके एग्जांपल आप दे देना विद द एरिया। देन आप बताएंगे कि ये किस एरिया में पाए जाते हैं, किस एरिया में है ये सब, जैसे कि आपको ये तीनों पूरे एरिया आपको बताने पड़ेंगे। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू आपका सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया। देन आपका जो है नेक्स्ट आप बताएंगे कि ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है, जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखोगे कि ट्रांस, कि जब आपके एग्जाम में आएगा तो फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, फिर आप सिर्फ ट्रांस ह्यूमंस को डिफाइन करोगे कि ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है और फिर उसका एग्जाम्पल दे दोगे। ये जो गुज्जर बकरवाल वाला है वो आप एग्जाम्पल दे दोगे। देन उसके बाद आप लिखोगे कि ये जो है डिक्लाइन हो रहे हैं किस तरह से। तो अगर आपका यही पूरा पॉइंट बन जाता है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देन जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको वर्ल्ड मैप एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो आप बहुत ही 1 सेकंड के अंदर आप वर्ल्ड मैप बना लो, ठीक है। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन आता भी व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग के बारे में आप बताइए, वहां पे कहीं नहीं दिया गया है कि आप मैप के थ्रू एक्सप्लेन करें। स्टिल यू कैन मेक मैप टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। जैसे मैंने इस बार बच्चों को प्रैक्टिस कराया था, मैंने पहले भी अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने प्रैक्टिस कराया था कि आप जो है ये जो वर्ल्ड मैप है इसको एक बार बनाने की प्रैक्टिस करिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा बन जाएगा आपसे, लेकिन आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आप देखिए बिना देखे आप रफ हैंड से बहुत अच्छा बना लेंगे। कम से कम पता चलना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है। इतना अगर ढंग से आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपने जो आप किसी कोई भी आंसर इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा तो ये वर्ल्ड मैप बना के आप उन एरियाज को जो है डिमार्केट कर सकते हो। तो इससे जो है आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो ज्योग्राफी में जो है मैप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जितना आप इसके थ्रू अपने आंसर्स को दिखाओगे उतना ही ज्यादा जो है आपको नंबर फैच करने में मतलब कि काफी आसानी होगी। तो ये चीज को आप यूज करिएगा, आप अपना जो है एक रफ तरीके से वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना सीख जाइए। तो आप ये जो है जो भी एरियाज हैं वो मैप के थ्रू आप दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आपको उतना लिखना भी नहीं पड़ेगा और एक सेकंड के अंदर आपका मैप ड्रॉ हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। नाउ कमर्शियल लाइफ स्टॉक आपकी क्लास बच्चों कब तक है? 9-10 तक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये। इसके बाद कौन सी क्लास है आपकी? मैम लाइब्रेरी की है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये। नाउ अब उसका अपोजिट होगा कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। अच्छा एक चीज मैं इसमें बताना भूल गई कि जो नोमैडिक हर्डिंग है इट इज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ पेस्टोरल फार्मिंग। तो ये मॉडर्न है। अब इसमें आपको अंडरलाइन करा देती हूँ, ऑर्गेनाइज्ड, कैपिटल इंटेंसिव। आप कुछ ना भी पढ़े तो अगर आप ये सारे वर्ड्स अपने आंसर में लिख दोगे पॉइंट वाइज तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लाइफ कमर्शियल मीन्स
अब देखो कमर्शियल मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी मार्केट में सेल करने के लिए करते हैं तो उसमें आपको पता है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। अब जब लार्ज स्केल पे करोगे, क्वालिटी के लिए करोगे, तो आप वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, उसमें पूंजी भी अधिक लगती है, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पस आपके रेंचेस बनाए जाते हैं, रेंचेस। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेंचिंग इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस। अगर आपने कभी डिस्कवरी सब देखा हो तो बाड़े होते हैं बड़े बड़े जिसमें जो एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। दीज रेंच, इसको हम रेंचेस कहते हैं, परमानेंट रेंचेस। दीज रेंचेस कवर लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स। तो जो रेंचेस होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में एरिया की कमी नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े रेंचेस होते हैं जिसमें जिनको पार्सल्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड विच आर फेंस टू रेगुलेट द ग्रेजिंग। और क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि ग्रेजिंग को रेगुलेट कर सके। मान लो जैसे कि आपका एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये आपका एक बहुत बड़ा रेंच है, ठीक है। रेंच मतलब एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी घासें लगी हुई हैं, ठीक है। अब इस रेंच को हमने डिफरेंट पार्सल्स में डिवाइड कर दिया, ये पार्सल में डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। और इसमें फेंसिंग कर दी, फेंसिंग मतलब हमने जो भी तार वार लगाने हैं सब हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, एक महीने या एक 2-3 हफ्ते हमने इस पार्सल में गायों या भैंस जो भी है जो हमने पाला हुआ उसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या किया, इस एरिया का घास खा लिया, ठीक है। फिर जब यहाँ पे घास खत्म हो जाती है तो हम उनको कहाँ छोड़ते हैं, या कम हो जाती है तो हम उनको दूसरे रेंच में, दूसरे पार्सल में लेके जाते हैं। इस एरिया में, इस एरिया को हम एज इट इज छोड़ देंगे, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, ठीक है। तब तक क्या होता है कि इस एरिया में घास उग जाती है, फिर इस एरिया में भी घास आ जाएगी, जब तक हमारे एनिमल्स इस एरिया में पेस्चर जो है घासों को चरते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ही साथ साथ मतलब कि पूरी की पूरी घास एक साथ खत्म नहीं होती है, जब तक वो यहाँ पे रेयर करेंगे तब तक यहाँ की घासें दोबारा निकल आती है। तो इस चीज के लिए जो है आपके पार्सल्स क्रिएट किए जाते हैं, ताकि मतलब कभी भी यहाँ पे घासों की कमी ना हो। जैसे होता नहीं कि ओवर ग्रेजिंग की समस्या हो जाती है कि पूरी घास खा गए जानवर, क्योंकि एक ही जगह पे आप बार बार उनको खाने के लिए लेके जा रहे हो, जैसे इंडिया में होता है। तो ये चीज को हटाने के लिए ही आपका ये टेक्निक यूज होती है कि रेंचेस होते हैं, बड़े बड़े रेंचेस क्या होते हैं, बाड़े होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, जहाँ पे वो घास खाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूरे रेंचेस को पार्सल्स में डिवाइड करते हैं ताकि जो ग्रेजिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट किया जा सके, और डिफरेंट पार्सल्स में वो डिफरेंट टाइम पर जाते हैं ताकि कभी भी घास की कमी ना हो। The number of animal is in a pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture। और एनिमल्स भी सिर्फ उतने ही वहां पे वो रखते हैं जितना उस एरिया में कैपेसिटी होती है कि वो उसको मतलब वो घास उतना प्रोड्यूस कर लेंगे, पेस्चर उतना उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इंडिया की तरह नहीं कहीं भी छोटी सी जमीन है वहीं पे जानवरों को छोड़ दिया गया, क्योंकि आप जानते हो वेस्टर्न कंट्री में हर कुछ बहुत सिस्टमेटिक होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। This is a specialized activity. This is a specialized activity in which only one type of animal is reared. Now it is very important difference between nomadic herding and in this type of farming. ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिंगल एनिमल को ही रेयर किया जाता है, चाहे वो बफेलो हो, चाहे काव हो, चाहे शीप हो। लेकिन नोमैडिक हर्डिंग में कोई भी आपका चाहे गाय है तो गाय भी रख लिया, भैंस तो भैंस भी, शीप है उसको रख लिया, गोट है उसको भी रख लिया, है ना। क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता, बस इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से किया जाता है, और सिर्फ एक एनिमल को ही रख के उसी पे फोकस किया जाता है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से होते हैं इसमें, शीप है, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। अब जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहाँ पे शीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया जैसे एरिया में कैटल है, लेकिन इंडिया में तो इतना वे में नहीं हो पाता है। देन फॉरेन कंट्रीज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे काव है, बफेलो है, ये सब होता है। अब इनसे प्रोडक्ट क्या मिलता है, मीट, वुल, हाइड्स, स्किन, इनको प्रोसेस किया जाता है और इनको साइंटिफिकली पैक करके डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब वुल है, आप पता है आपकी ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना फायदेमंद है, वुल वो लोग बहुत ज्यादा बेचते हैं। मीट है, चाहे बफेलो हो चाहे काउ, जिनको उनको मीट को वो प्रोसेस करते हैं, उन्हें ड्राई करके इस तरह से उनमें केमिकल्स लगाते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके, वो कभी खराब ना हो, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे ही जो मिल्क होता है उसको भी प्रोसेस कर देते हैं। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। सब कुछ साइंटिफिक बेसिस पर, देखो ऑर्गेनाइज्ड, साइंटिफिक बेसिस, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अब आप लगातार आगे के जो आप हम टॉपिक्स हैं उसमें पढ़ते रहेंगे, तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से रट लेना, ये हमें हर जगह यूज करना पड़ेगा। हाई फाई ये वर्ड्स हैं तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। एम्फोसिस इज ऑन ब्रीडिंग। अब देखो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में वो किस चीज पे एम्फोसाइज करते हैं, ब्रीडिंग पे। ब्रीडिंग आप जानते हो ना क्या होता है, कि जो बेहतर क्वालिटी ऑफ एनिमल्स को प्रोड्यूस करना, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। तो जो पशु जो इसमें रखे जाते हैं बहुत साफ सफाई से काम होता है। जो अगर आप उनके जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है ना, वहाँ पे हर काम मशीन से होता है, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। खिलाने से लेकर दूध निकालने तक
हर चीज वहाँ पे साइंटिफिकली होता है। वहाँ पे आपको एक गोबर जो है या कोई भी ऐसी चीज, वहाँ पे गंदगी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। जो एनिमल्स होते हैं उनके हेल्थ केयर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, सफाई साफ सुथरा होता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट किया जाता है, ब्रीडिंग होती है, डिजीज कंट्रोल होता है, मतलब ये सारी जो है चीजें वहाँ पे फॉलो की जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको भले ही समझ में आए ना, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है अगर ये टॉपिक आता है तो। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो ऐसे देश है जहाँ पे आपका कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग को फॉलो किया जाता है। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का जो ये पूरा एरिया है, ये आपका जो ये कौन सा एरिया है, जो आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया है। देन ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। हाँ, देन ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे यूरुग्वे है, ब्राजील का कुछ हिस्सा है, एंड देन ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये सारे एरियाज को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार आ जाता है कि ये एरिया जो है या फिर न्यूजीलैंड है किस उस चीज के लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए। ठीक है, तो आज हमने ये दो चीजें पढ़ ली, तो आप इसको, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान है, एक बार इसकी आप रीडिंग जरूर कर लेना। जैसे कमर्शियल लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आप कुछ ना भी देखो तो बहुत सिंपल है, कमर्शियल लेवल पे इसलिए ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है, रेंचेस बनाए जाते हैं, इसमें परमानेंट रेंचेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, और यहाँ पे रेंचेस आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स टू रेगुलेट द ग्रेजिंग प्रोसेस एंड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एनिमल्स को रखा जाता है। देन इट इज a specialized type of animal rearing in which only one single type of animal is reared on a very scientific basis. देन डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स यहाँ पे रेयर किए जाते हैं वो है शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एनिमल्स को रेयर किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक एनिमल को, हर तरह ये नहीं कि एक ही बाड़े में सब एनिमल्स को घुसा लिया। देन इसमें मीट, वुल, हाइड, सीक, इनको प्रोसेस करके पैक करके पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, वर्ल्ड मार्केट में। और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स जो है पूरी ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक बेसिस पर होती है। यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल अच्छा आपको लिखना है, रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। द मेन एक्टिविटीज जो यहाँ पर होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो कौन कौन सी एक्टिविटी है, ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स, एंड किस कंट्रीज में ये किया जाता है वो आपको मैंने अंडरलाइन करा दिया है। ये दो जो टॉपिक हैं आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, सिर्फ लर्न ही करना है आपको, मैंने टिक मार्क करा दिया है। तो आप इसका आप चाहें तो इसको पॉइंट वाइज आप 5 पॉइंट्स लिख लें। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप सेंटेंसेस फॉर्म में लिखेंगे तो आप सब हो जाए, सेंटेंस में नहीं लिखना है। जो जो मैंने आपको टिक मार्क कराया है बस आप उसको एज ए नोट फॉर्म में लिखिए, बाद में आप इतने हो सक्षम कि आप उसको जो है अपने वर्ड्स में बना सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रीडिंग है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, साइंटिफिक बेसिस है, रेंचेस है, पार्सल है, कम से कम रेंचेस, पार्सल, है ना, साइंटिफिक बेसिस, कैपिटल इंटेंसिव, ये वर्ड्स ही आप याद रख लोगे ना, फिर इन्हीं वर्ड्स को आप अपने आंसर में एक्सपेंड करके लिख देना, और ये एरियाज को याद कर लो। अब जैसे आपका नोमैडिक हर्डिंग है, उसमें आपको क्या याद रखना है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांस ह्यूमंस अकॉर्डिंग टू सीजन मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड इन सर्च ऑफ पेस्चर वाटर, ये जो है माइग्रेशन का, ये सब आप उसमें बस ये चीजें आप लर्न कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम कल एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर विच इज प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है? 1 2 3 1 मिनट में स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, बताइए अगर कुछ पूछना